قتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، لے جام شہادت پیتے ہیں سامی کی ادا پہ جھوم کے ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، اے عزیز ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ محترم حضرات اور مجلس میں موجود تمام سامعین کرام اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 15 اگست یعنی یوم آزادی کا دن ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب اور اپنے اسلام اور اپنی پوری عزت و وقار کے ساتھ اس ملک میں رہ سکیں۔ دوستو 1947 عیسوی میں جو بر صغیر تقسیم ہوا تھا، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کو بر صغیر کہتے ہیں۔ اس کی تقسیم کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اس بر صغیر پر 150 سال سے زیادہ انگریز نے حکومت کی۔ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ان انگریز کے خلاف علماء میدان میں نکلے، علماء میدان میں نکلے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بالآخر ہندوستان سے انگریز کو جانا پڑا۔ دوستو 1601 عیسوی میں ہندوستان میں انگریز آیا تھا، اور جب ہندوستان میں انگریز آیا تو اس وقت جہانگیر ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ اس وقت پورے ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ صرف دلی کے شہر میں 1000 دینی مدارس تھے۔ 1608 عیسوی میں برطانیہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک تجارتی وفد ممبئی کے ساحل پر اترا اور اس نے کہا کہ میں یہاں کی تجارت کو مستحکم کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اس وقت کا بادشاہ جہانگیر تھا، وہ سخت عاقلت اندیش تھا، وہ انگریز کی سیاست کو سمجھ نہ سکا اور اس نے انگریز کے اس وقت کو بہت زیادہ سہولتیں دی، بڑے بڑے کارخانے لگانے کی اجازتیں دی، کئی ریاستوں کی ریاستیں انگریز افسروں کے نام لگا دی، کئی علاقوں کے علاقے انگریز افسروں کے نام ہبا کر دیے۔ چنانچہ اسی طرح ہوتے ہوتے 1740 سے پہلے انگریز 4 ریاستوں کا گورنر بن گیا، 4 ریاستوں پر حکومت کرنے لگا۔ تو پھر اس کے بعد 1772 عیسوی میں سب سے پہلے ہندوستان کی تاریخ میں جس شخص نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا تھا وہ شاہ عبد العزیز تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے انگریزی حکومت، انگریزی ذریت، انگریزی تمدن کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ شاہ عبد العزیز کے اس فتوے کے بعد ایک آدمی جس کا نام حیدر علی تھا، وہ حیدر علی انگریز کی فوج میں شامل تھا۔ اس حیدر علی کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، اس نے یہ سنا کہ علماء نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کر دیا ہے۔ وہ بچہ رضاکاروں کو تربیت دینے لگا۔ اس نے اپنی قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا پایا، اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے 350 رضاکاروں کا ایک دستہ مقرر کیا جس نے اس نوجوان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس نوجوان کو تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ کی زبان اس نوجوان کو سلطان ٹیپو کہتی ہے۔ میرے دوستو آج ہندوستان کس قدر گمراہی میں ہے، اس بدقسمت قوم کا حال دیکھیے کہ آج ہندوستان کے نصاب تعلیم میں، آج ہندوستان کے یونیورسٹی اور کالج کے نصاب میں سلطان ٹیپو کی تاریخ کو مکمل طور سے پڑھایا نہیں جاتا۔ آج سلطان ٹیپو کا جو فوٹو کتابوں میں چھپایا گیا وہ سلطان ٹیپو کا فوٹو نہیں ہے۔ سلطان ٹیپو
ने कभी दाढ़ी पर उस तरह नहीं फुलाया, लेकिन सुल्तान टीपू का जो किताबों में फोटो छापा गया उसमें दाढ़ी नहीं है। सुल्तान टीपू दाढ़ी की सुन्नत का पावन था। मौलाना हुसैन अहमद मदनी अपने मकतूबात में लिखते हैं कि सुल्तान टीपू अपने दौर का कुतुब था। मौलाना मदनी कहते हैं कि सुल्तान टीपू शमसिंदादार था। अरे सुल्तान टीपू तो इतना नेक था कि उसने मैसूर की जामा मस्जिद तामीर कराई, और मैसूर की जामा मस्जिद तामीर कराने के बाद उसने कहा कि इस मस्जिद में सबसे पहले नमाज बाजमात को आलिम पढ़ाए तो साहिब तरतीब हो। उलमा जानते हैं कि साहिब तरतीब उसको कहते हैं कि जिसकी 5 नमाजें इकट्ठी कभी कज़ा न हुई हो। जब उसने ये शर्त लगाई कि इस मस्जिद में सबसे पहले नमाज बाजमात को आलिम पढ़ाए तो साहिब तरतीब हो, सारे उलमा अपनी जगह पे खड़े रहे। सुल्तान टीपू देखता रहा, जब कोई आगे न बढ़ा तो खुद सुल्तान टीपू आगे आए और उसने कहा कि मैं ये बात बोलना नहीं चाहता था कि जब से बालिग हुआ हूँ आज तक मेरी 5 नमाजें इकट्ठी कभी कज़ा नहीं हुई है। वो इतना बड़ा दुर्वेश खुदा इंसान था, अंग्रेज ने उसका नाम कुत्तों के नाम पर रखा। आज जिन लोगों ने सुल्तान टीपू का नाम कुत्तों के नाम पर रखा वो अंग्रेज की माशाई औलाद है, सुल्तान टीपू के नाम लेवा नहीं है। मेरे दोस्तों, आप देखते हैं 1799 में सुल्तान टीपू को शहीद कर दिया गया। वो तरीक़ा मैसूर का मुजाहिद शहीद हो गया। वो मुजाहिद जिसने कहा था कि गीदड़ की 100 बरस की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है, वो मुजाहिद मैसूर के किला पर शहीद हो गया। चुनांचे इसके बाद 1856 में दिल्ली के इलाका में तमाम बड़े बड़े उलमा की मीटिंग हुई, जिसमें मौलाना जाफर खानेसरी, मौलाना विलायत अली, मौलाना हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हाफिज जावेद शहीद, ये सारे लोग इस मीटिंग में शरीक हुए। तो मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया कि तुम्हें पता नहीं है कि अंग्रेज हमारे सर पर चढ़ चुका है, फैसला तुम लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, या लड़ेंगे या कटेंगे, अंग्रेज को यहाँ रहने नहीं देंगे। जब ये बात फरमाई तो एक आदमी उठ खड़ा हुआ, उसने कहा हजरत हमारी तादाद बहुत थोड़ी है, हमारे वसाइल बहुत थोड़े हैं। तो मौलाना कासिम नानोतवी ने तारीखी बात फरमाई और कहा कि हमारी तादाद काशियाने फर्क से भी कम है। फिर कहने की देर थी कि लोगों में जज्बा पैदा हुआ। उसके बाद 1857 की जंग आजादी हुई, 2 बहार बनाए गए, एक बहार अम्बाला पर जिसकी क़यादत मौलाना हाफिज जावेद शहीद के पास थी, दूसरा बहार शामी पर जिसकी क़यादत मौलाना जाफर खानेसरी के पास थी। मेरे दोस्तों, आप हैरान होंगे कि उलमा ने लड़ाइयाँ लड़ी, जंगी का इस्तेमाल हुई, गोलियां चली, उलमा शहीद हुए, हाफिज जावेद शहीद हुए, मौलाना रशीद अहमद गंगोही को जख्म आए और मौलाना कासिम नानोतवी खुद जख्मी हुए। मेरे दोस्तों, अंग्रेज ने अपने हिंदुस्तान के अपने मुशीरों से, हिंदुस्तान के अपने गुजरा से, हिंदुस्तान के अपने लोगों से रिपोर्ट तलब की कि बताओ इस जंग आजादी के बाद तुम्हारी हुकूमत हिंदुस्तान में कैसे कायम रह सकती है। तो डॉक्टर विलियम जो हिंदुस्तान का बहुत बड़े सियासतदानों में से था, उसने अंग्रेज बादशाह बरतानिया को जो रिपोर्ट भेजी, उस रिपोर्ट के अल्फाज में आपको सुनाता हूँ। उसने लिखा कि हिंदुस्तान में अंग्रेज बहुत ज्यादा, हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत ज्यादा बेदार है और अभी तक जंग आजादी सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी है। इसलिए जब तक मुसलमानों में जज्बे जिहाद मौजूद है उस वक्त तक हम मुसलमानों पर हुकूमत नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले मुसलमानों के अंदर से जज्बे जिहाद को खत्म करना जरूरी है और उससे पहले एक चीज का खत्म करना जरूरी है, वो ये है कि हिंदुस्तान से कुरान करीम को खत्म कर दिया जाए। चुनांचे 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे हिंदुस्तान में अंग्रेज ने चलाए और उसके बाद उलमा को खत्म करने का फैसला किया गया। मेरे दोस्तों, अंग्रेज मौलिक मिस्टर खामिस अपनी याददाश्त में लिखता है कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था कि जिस दरख्त पर उलमा की गर्दनें न लगती हो। खामिस भी कहता है कि उलमा को हाथियों पर खड़ा करके दरख्त से बांधकर नीचे से हाथियों को चला दिया गया। खामिस भी कहता है कि लाहौर की दरियानावी में 80 उलमा को गोलियों में बंद करके डाला जाता और ऊपर से गोलियों का निशाना बना दिया जाता। खामिस भी कहता है कि दिल्ली की शाही मस्जिद में अंग्रेज ने फांसी का फंदा बनाया था और एक एक दिन में 80 उलमा को फांसी दी जाती थी। खामिस ने कहता है कि मैं दिल्ली में अपने खेमे में था कि मुझे महसूस हुआ कि
बुखार की बदबू आ रही है। मैं अपने फिल्म के पीछे चला गया तो देखता हूँ आग के अंगारे दहक रहे हैं और उन अंगारों पर 40 उलमा के कपड़े उतार कर उन अंगारों पर डाला गया। तो कहता है कि मेरे देखते देखते 40 और उलमा को डाला गया, मेरे सामने उनके कपड़े उतारे गए और अंग्रेज ने कहा बोलियो जिस तरह 40 उलमा को आग पर पका दिया गया है तुम्हें भी पका दिया जाएगा। तुम सिर्फ ये कह दो कि मैं 1857 की जंग आजादी में शरीक नहीं था, अभी छोड़ दूंगा। थामिस्नी कहता है मुझे पैदा करने वाले की कसम, मैंने देखा कोई आदमी ऐसा नहीं था कि जिसने अंग्रेज के सामने गर्दन झुकाई हो। आज कोई हिंदुस्तान का ठेकेदार बनता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान को आजाद कराने में अगर उन्हीं लोगों का जिक्र आता है जिनका तुम करते हो, तो ये 14,000 उलमा जो फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, इनकी कुर्बानियां कहाँ चली गई? ये किस लिए शहीद हुए? ये किस लिए लड़े? इन्होंने अपनी गर्दनें किस लिए कटाई? क्या हिंदुस्तान को आजाद कराने में इन उलमा की कुर्बानियों का कोई दखल नहीं है? क्या अहमदुल्लाह शाह मदरासी की तारीख नहीं है कि जिसको अंग्रेज ने हथकड़ियां पहनाकर गोरे के सामने पेश किया तो वो गोरा अफसर उठकर रोने लगा। उसने कहा शाह साहब आप तो हमारे उस्ताद थे, मैंने तो मदारिस में आपकी अरबी की किताब पढ़ी है, साहब लोगों का हुक्म है, आप पर वारंट है, एक दफा कह दो कि मैं 1857 की जंग आजादी में शरीक नहीं था, अभी छोड़ दूंगा। मौलाना अहमदुल्लाह शाह मदरासी ने बड़ी अजीब बात कही, कहा ओ मेरे शागिर्द, मैं अंग्रेज से जान बचाने के लिए रसूलुल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगा। हाय हाय किसी ने कहा हाय ये हर पे तमन्ना से सुबह की दुनिया, हाय ये हर पे तमन्ना से सुबह की दुनिया, सख्तियां दुश्वारियां पाबंदियां मजबूरियां, याद अय्यामे जफा आखिर भुलाए तो भुलाए किस तरह, याद अय्यामे जफा आखिर भुलाए तो भुलाए किस तरह, दिल फरंगी से लगाए तो लगाए किस तरह। मेरे दोस्तों हिंदुस्तान को आजाद कराने में जहाँ इन तमाम उलमा की कुर्बानियां हैं, वही एक मौलाना हुसैन अहमद मदनी है कि हुसैन अहमद मदनी जब पैगंबर के रोजे पर गया तो 18 साल रसूलुल्लाह के रोजे पर बैठकर हदीस पढ़ाई। वो हुसैन अहमद मदनी अपने गाड़ी के बालों से रसूलुल्लाह के रोजे में सफाई करता है। रेशमी रुमाल तहरीक के जुर्म में अपने उस्ताद के साथ में हिजाब में गिरफ्तार कर दिया गया। उसकी हुसैन अहमद मदनी वही हुसैन अहमद मदनी पैगंबर के रोजे को देखकर कहता है, वो हुसैन अहमद मदनी पैगंबर के रोजे को देखकर कहता है कि हर बे तमन्ना से जुबान की दुनिया, हर बे तमन्ना से जुबान की दुनिया, सख्तियां दुश्वारियां पाबंदियां मजबूरियां। मेरे दोस्तों हुसैन अहमद मदनी का एक वक्त ऐसा आया कि अंग्रेज ने गोली का हुक्म दे दिया था। लोग कहते थे कि हुसैन अहमद स्टेज पे नहीं आएगा, कराची के खिलाफ एक कॉन्फ्रेंस है, तहरीक के खिलाफत चल रही है और खिलाफत एक कॉन्फ्रेंस में 9 लाख का इज्तिमा है। हुसैन अहमद मदनी को गोली का हुक्म है। हुसैन अहमद मदनी बगल में कपड़ लेकर स्टेज पर आ गया, चारों तरफ अंग्रेज की तोपें लगी हुई है। हुसैन अहमद मदनी ने उसकी तोपों को बुलबुल से और उसकी गोलियों को गुल से तशबीह देते हुए कहा, ये फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, ये फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, शहीदे नाज़ की कुर्बत कहाँ है। और अंग्रेज को खिताब करके कहा, खिलौना समझकर न बर्बाद करना, खिलौना समझकर न बर्बाद करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं, खिलौना समझकर न बर्बाद करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फरंगी के पहलों में खिलौना समझकर न बर्बाद करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। शजर आजादी को तुमने खींचा, कल उस मक्के को आए हुए हैं। ये बड़े अकाबिर थे जिनकी तारीफ को हमने आज फरामोश कर दिया। आज हिंदुस्तान की तरफ हम नजर डालते हैं तो कोई हमें गद्दार वतन का सर्टिफिकेट मांगता नजर आता है, कोई हमें देशद्रोही कहता नजर आता है, कोई CNRC लाकर हमें दरबदल करना चाहता है, वतन से बाहर करना चाहता है। ध्यान रखना और याद रखना कि हम जिस तरह तक लड़े थे हम आज भी लड़ने के लिए तैयार है। हम मुल्क की हिफाजत के लिए कल भी मैदान में थे, हम आज भी मैदान में आएंगे और हर जुल्म का हम मुकाबला करेंगे। कल मुकाबले में अंग्रेज थे, आज मुकाबले में तुम हो। अगर हमारे क्योंकि हिंदुस्तान को आजाद कराने में सिर्फ किसी एक कम्युनिटी, किसी एक समाज, किसी एक मजहब वालों का दखल नहीं है, बल्कि सारे मजहब के लोगों ने, सारे कम्युनिटी के, सारे जनजाति के लोगों ने इसको आजाद कराया है। अगर एक तरफ चंद्रशेखर आजाद है तो दूसरी तरफ मौलाना अबुल कलाम आजाद है। अगर एक तरफ
अगर इस तरह एक तरफ सुभाष चंद्र बोस है तो दूसरी तरफ मौलाना जाफर खान नदवी है, कितने नाम गिनाओ, आप नाम गिनते जाएंगे, उनसे ज्यादा हमारा खून मिलेगा, उनसे ज्यादा हमारा बलिदान मिलेगा, उनसे ज्यादा हमारी कोशिशें मिलेगी, उनसे ज्यादा हमारी कुर्बानियां मिलेगी। और आज हमें सिर्फ इस वजह से दरबदर किया जा रहा है, आज हमें सिर्फ इस वजह से धमकाया जा रहा है कि आज हमारे मिट्टी में है, आज हम कमजोर है। क्या मिलना कि कल जिहाद का फतवा दिया गया था शाह अब्दुल अजीज ने 1772 में, और जब जिहाद का फतवा आ जाता है तो किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो अपने घरों में बैठे इन पीरों के पास किसी को जिहाद का फतवा हो जाता है तो हर मुसलमान के लिए वाजिब होता है, फर्ज हो जाता है कि वो अपने घरों को छोड़े, अपनी दुकानों को छोड़े, अपने मकानों को छोड़े, अपने बीवी बच्चों को छोड़े और मैदान जिहाद में आकर कत्ल के लिए जान दे और अपने इस्लाम के लिए, अपने मजहब के लिए जान दे। हम कल भी कुर्बानी दिए थे, हम आज भी कुर्बानी देंगे। इसलिए इस भूल में न रहा जाए कि हमें दबा दिया जाएगा, हमें यहाँ से दरबदर कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये तारीख थी हिंदुस्तान की मुख्तसर थी जो आपके सामने पेश की है, लेकिन हमें और आपको चाहिए, हम और सबको चाहिए कि हमें अपनी तारीख को मुकम्मल तौर से पढ़ना चाहिए और इसके लिए मुताला करना चाहिए। और जो हमारा जो इतिहास मिटाया जा रहा है उसको जिंदा करना चाहिए। एक बात जो जहन में आई वो मैं आपके सामने रखूं कि आपने देखा कि हमारे इतिहास को किताबों से किस तरह मिटाया गया। अभी मैंने सुल्तान टीपू की तारीख बयान की, और दूसरी बात ये जहन में ये रहे कि आज जो दूसरे लोग थे उनकी आज स्टेचू, उनकी लाटें बनी हुई है। जब 15 अगस्त 26 जनवरी या जन्म आता है तो उनके ऊपर फूल माला करा दिया जाता है, लेकिन हमारे अकाबिरीन की न कोई लाटें है, न हमारे अकाबिरीन की न कोई लाटें है, न उनकी कोई पुख्ता कब्रें हैं, और ना तो ये जायज है कि उनके ऊपर फूल माला चढ़ाया जाए। इसलिए हमें जरूरी है कि हमें अपने अकाबिरीन की तारीख को जिंदा रखने के लिए हमें उनके नाम पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तंजीमें, तहरीकें और लाइब्रेरीज वगैरह खोलनी चाहिए ताकि हमारे अकाबिरीन की तारीख को कोई भुला ना सके, हमारा इतिहास जिंदा रह सके, हमारी तारीख जिंदा रह सके। इसके लिए हम सबको